Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Chima Saab, for kind introduction. And I think we are just approaching the last lecture of the series, diabetic dyslipidemia. And the further lectures, I think I can discuss with the Chima Saab and the sponsors that what we can do further, what the next we can do. There's a lot of many topics, although it's very difficult to cover the diabetes in 3 or 4 lectures. It's a huge topic, and as Dr. Sabha was mentioning, the gestational diabetes and the thing, anything, and the insulin therapy itself is a great topic that because in the general practice, the nightmare of a family physician is starting the insulin. So I think we can talk a lot about that. So first of all, my today's talk is diabetic dyslipidemia. Dyslipidemia means that it doesn't mean that if you have the raised cholesterol. What I call is the diabetes itself. It's not a single disease entity. It's a complex of the diseases. So they have so many sisters and brothers. Diabetes has sisters and brothers. Dyslipidemia is one of their elder brother, or you can say the younger brother. And we have other brothers and sisters as well, like hypertension, the heart disease, a thing like this. So what we see is that because dyslipidemia, it means that we have certain cardiovascular disease has certain risk factors. If you are having the systolic blood pressure of more than 150, the chances of heart disease is 1.5 times. And if you are having the glucose intolerance, I'm not talking about the frank diabetes. It's just even if you are pre-diabetic, then still the risk of having the heart disease is 1.8. And this risk is multiplied when you are a smoker. And the third is the dyslipidemia you have. So this is one of the highest ratio which you can have. So if you are dyslipidemic and your total cholesterol is more than 260, which is you commonly find in your clinical practice with cholesterol more than 260, and the risk is multiplied by the factor of 2.3. So in between you have this certain other. So this thing is that there is a kind of overlap. If you have dyslipidemia and hypertension, it means that your risk factor is 3.5 times. And if you take all the 3 factors in consideration, and you have all these 3 factors, you are hypertensive, you are dyslipidemic, you are glucose intolerant, and you can imagine the risk of heart disease 6.2 times. So this is how they are interrelated. So this is the importance that we have to manage. We are not having the glucose-centric approach that you just try to control the blood sugar level effectively and everything would be okay. So you have to manage the hypertension, you have to manage the dyslipidemia, you have to manage the glucose or blood glucose level effectively to reduce the risk of heart disease, which is main killer among the diabetic patients. So diabetic dyslipidemia is slightly different from the other disease entities, and because it's more commonly seen in the type 2 diabetics, although type 1 diabetic, they can have dyslipidemia. And the hallmark of the diabetic dyslipidemia is that you have raised triglyceride level. This is very, very important. And LDL, you might not have the very high level of LDL in the diabetic dyslipidemia. You have raised, but the triglycerides, you might see they're touching the sky high limit. And the last but not the least, the small, just focus on this last line. Small, I will keep on repeating this: small, dense LDL particles increase. They are more atherogenic. If you have raised level of these small dense LDL, so definitely you have more risk of having heart disease. So because all these things, high triglyceride level, high LDL level, and among the LDL, because LDL have so many variations, so you have the small dense LDL particle. very, वो इससे भी छोटा है,
वो VLD वेरी लो डेंसिटी है। सेपरेट वो नहीं बताते। नहीं, ये मैं भी उससे हम बात करेंगे, वो बात करेंगे वो जो हम नहीं बता रहे होते, जो हिडन चीज़ जिसको हम भी इग्नोर कर रहे होते हैं। नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज हाँ वो हम उसमें बात। सो दिस मोर एथ्रोजेनिक बिकॉज जो आपकी बात हुई ना, आपने एक दवाई का नाम सुना होगा रोज़िग्लिटाज़ोन, इट वाज इन द मार्केट। द प्रॉब्लम विद द रोज़िग्लिटाज़ोन, इट वाज लीडिंग टू द raised level of small dense lipoprotein, this LDL. So that's why, because even in spite of the fact if your LDL is quite normal on the lower side or normal side or slightly above side, if you have raised small dense LDL particles, you have more chance of atherosclerotic cardiovascular disease. So this is more important when you're talking about the dyslipidemia. So dyslipidemia is very, very common. This is not a very uncommon thing. So almost more than 80% of the people, they are dyslipidemic. I hardly see, but in my practice, I usually see is touching almost the incidence up to the 90%. Everyone is having dyslipidemia. Coming every newly diagnosed patient bringing the report of the lipid profile, they are dyslipidemic. Very, very common, very, very common entity. And this is not basically the blood sugar is not the responsible for this dyslipidemia. This is the insulin resistance in type 2 which is responsible, because insulin resistance causes increased triglyceride level, VLD level, and small dense LDL particle level. So everything is heading towards the cardiovascular disease, because you just keep in your mind basically what is your plan in your mind, why are you treating the dyslipidemia. It is basically the heart disease which you are trying to prevent it. So एक बड़ी कॉमन सी बात, हम थोड़ी सी बात मैं थोड़ा सा आखिर जब हम we'll touching the approaching the treatment plan, so I'll discuss that. So there are certain lipoprotein abnormality. There are two kinds of lipoprotein abnormalities. One is the quantitative, which is quantitative means that you have increased triglyceride level and decreased HDL level. HDL level at cholesterol is supposed to be the protective, so it gives you kind of protection. And qualitative, because increase in small dense LDL particle and a very large LDL VLD1 that predispose to form a small dense LDL particle. Because this is basically the VLDL जो हम बात कर रहे होते हैं ना, उसमें दो पोर्शन होते हैं. जो VLD1, it is ultimately leading to the small dense, giving birth to the small dense LDL particles. So that's why it's more atherogenic. So what I see, that why I put this most common abnormality in the diabetic dyslipidemia is fill in the blanks, high triglyceride level, hypertriglyceridemia. This is very, very commonly seen. Because previously people were thinking that because they raised triglyceride level, they are not associated with the heart disease. But now they are one of the risk factor. So again, just talking about insulin resistance causes production of the VLDL. VLDL is divided into VLD1. This is large VLD1, triglyceride rich, and small dense VLDL2. So what they do is, in addition to increased secretion of VLDL, there is decreased clearance of VLDL due to decreased hepatic uptake and impaired activity of lipoprotein levels. तो ये थोड़ी सी इसमें पैथोफिजियोलॉजी होगी, इसमें आप इसकी डिटेल में ना जाएं, तो उसमें हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. The small dense lipoprotein level are more prone to have permeate the intima more easily where they are trapped by the proteoglycans. किसी को पैथोलॉजी से कोई है, किसी का ताल्लुक है पैथोलॉजी से? देखें तो आप देखो ब्लड वेसल के अंदर ना एक होती है एंडोथीलियल होती है, उसके नीचे इंटमा होती है, जो उसके इंटमा जो होती है ना, तो ये बेसिकली दे परमिएट वेरी इजीली, वो अंदर चले जाते हैं, उसके नीचे चले जाते हैं, एंड इंक्रीज मोर बिकॉज the LDL cholesterol level is not overly increased. There is an increase in the more atherogenic small dense LDL particle because they trapped by the proteoglycans. अच्छा, ये जब पकड़े जाते हैं ना, तो इस पे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं. मैक्रोफेजेस आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बनते हैं, फाइब्रस टिश्यू बनती है, मोर स्मूथ मसल सेल्स और बनते हैं, तो ये कैप बन जाती है, फाइब्रस कैप बन जाती है, और इसके अंदर छोटी सी ब्लड वेसल भी होती है, और बाज़ ब्लड वेसल के अंदर हेमरेज हो जाता है, जिसको कहते हैं हेमरेजिक प्लाक, जो आपकी इमीडिएट
उसको हार्ट डिजीज़ को जन्म दे रहा होता है. कहते हैं बंदा पहले ठीक सी तो एकदम ही हार्ट अटैक हुआ. तो बेसिकली दिस हेमरेज इन दैट पर्टिकुलर प्लाक, एंड दिस इज where the small LDL particle, they are giving rise to this plaque. So this diagram shows this survival rate. If you have these, this is the 3 tertiles. When you have a kind of LDL cholesterol level less than 1.07 millimole, more than 1.70 to 1.8 millimole, and more than 1.8. So you have more survival when you have less small dense lipoproteins, and when you have less survival, this green line shows when you have raised LDL levels. Studies have shown that there is an inverse relationship between the HDL and cardiovascular disease. जितना HDL ज़्यादा होगा आपका हार्ट डिजीज़ होने का, and there is no benefit. लोग कहते हैं जी, अच्छा, what is the most difficult portion in the management of dyslipidemia? कौन सा मुश्किल, सबसे मुश्किल काम कौन सा है? टू इंक्रीज द HDL. होता ही नहीं है. अरे वैसे व्हाट आई सी इन माय प्रैक्टिस दैट जेनेटिकली प्रॉब्ली वी आर हैविंग वेरी लो लेवल ऑफ HDL. जेनेटिकली हम लोगों के अंदर वेरी लो HDL होता है. ये पता नहीं इसकी क्या वजह, आई डोंट नो, जेनेटिक रीज़न है. और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. पीपल इधर कमिंग टू यू, इधर आसिफ डॉक्टर साहब को जगह चीज़ बताइए HDL हमारा अच्छा हो जाए. सारा डिपेंड करता है लिवर के ऊपर. ठीक है ना, लिवर की एफिशिएंसी जो है वो सारा उस पे डिपेंड करता है कि HDL है या LDL है या अच्छा. प्रीवियसली द पीपल वर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्ली द नियासिन टैबलेट, दिस नियासिन मेडिसिन व्हिच वाज अवेलेबल देयर, it can, niacin therapy, they can increase the level, but it's unfortunately it has not shown any beneficial effect. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं. So अब ये देखें, we have two things. One is the angel, this is the शैतान. HDL, ये देखो आपको दायरा नज़र आ रहा होगा, ये शैतानी उसका पढ़ा हुआ. So HDL is your friend. LDL has been primary predictor of cardiovascular disease. ठीक है. In diabetes, LDL concentration may or may not be increased, but there is increase. मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ. Small dense LDL particle because more atherogenic. So ये भी हम जो नई चीज़ आज शायद हम सीखेंगे तो ये इसमें. So Eucapidias trial shown because the LDL cholesterol was number 1 predictor of atherosclerotic cardiovascular disease in type 2 diabetes patient. How often should clinicians screen for dyslipidemia? So this LDL is the primary treatment target. आपने LDL को ज़हन में रख के इलाज शुरू करना है. ठीक है ना. although आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स भी आ रहे हैं, मैंने कहा उसमें ज़्यादा कॉमन है, बट योर प्राइमरी फोकस इज़ LDL, बिकॉज जो अल्टीमेट जो आपका ट्राइग्लिसराइड है वो भी LDL को जन्म दे रहे होते हैं आगे. ठीक है. एंड ट्राइग्लिसराइड इज सेकेंडरी टारगेट. एंड मोर ओवर ये LDL को जब कैलकुलेट अगर आपके पास नहीं वैल्यू है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लिसराइड माइनस HDL डिवाइडेड बाय 5, ये फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है. बेस्ट आफ्टर 8 आवर्स फास्टिंग. अच्छा, ये फास्टिंग जो हम लेते हैं बेसिकली दिस इज़ मेंट फॉर द ट्राइग्लिसराइड. अगर आप टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहें तो उसके लिए फास्टिंग ज़रूरी नहीं है, किसी वक्त भी आप किया जा सकता है. दिस इज बेसिकली फॉर द ट्राइग्लिसराइड. अब 8 घंटे से ज़्यादा काफ़ी है. 8 घंटे हम शुगर के लिए हम 8 घंटे लेते हैं जी. एंड मेजर LDL डायरेक्टली इफ़ ट्राइग्लिसराइड इज़ मोर देन 400. ये फार्मूला जब ये फार्मूला इट डजंट होल्ड ट्रू when it is your triglyceride more than 400, so then you directly measure the LDL cholesterol. जो लैब वाले आपको LDL बता रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करके बता रहे होते हैं. लेकिन if you are having the triglyceride more than 400, so it means that you have to check the LDL level directly. So this is, ये थोड़ी सी complex diagram है लेकिन है बड़ी easy. लेकिन just keep in mind I will try to make it very simplified for you people. First of all, ये liver है. Liver is producing more VLDL. ठीक. ये VLDL क्या कर रहा है कि ये आपके थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म इट इज़ कॉजिंग द डिक्रीज लेवल ऑफ HDL. ठीक.
लेकिन इसको नीचे जब ट्रेस करते हैं इट इज़ गिविंग राइज टू LDL, थोड़ा सा LDL ये बना। LDL की 2 किस्में हैं, ये आपका नॉन ऑक्सीडाइज स्मॉल डेंस, ये लिखना SDLDL, स्मॉल डेंस लाइपो HDL, और ये ऑक्सीडाइज LDL है। LDL का 2 किस्म आगे ये बन जाती हैं। ये जो नॉन जो है ना स्मॉल डेंस, ये क्या करता है, ये इन्फिल्ट्रेट करता है इनटू आर्टीरियल वॉल, वहाँ रिटेन करता है, और ये ससेप्टेबल फॉर ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। एंड इंक्रीज्ड अपटेक बाय द मैक्रोफेजेस एंड एफिनिटी फॉर LDL कोलेस्ट्रॉल क्लियर नहीं होता, लेकिन मैक्रोफेजेस को पकड़ लेते हैं। जबकि जब ये अंदर पहुंच जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो स्टिमुलेट द मोनोसाइट इन्फिल्ट्रेशन एंड इंक्रीज स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, यानी स्मूथ मसल सेल भी माइग्रेट करते हैं, स्मूथ मसल सेल भी बनते हैं। तो ये दोनों जो किस्में हैं, ये पैथोलॉजिकली ये आपकी एथ्रोमा को बना रहे होते हैं। दिस इज एथ्रोजेनिक डिस्लिपिडीमिया विच लीडिंग टू एथ्रोसिक्लोसिस एंड अगेंस्ट ये HDL, अगेन जो लो HDL होता है ये अगेंस्ट ऑक्सीडाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है। बेसिकली ये अंडरलाइंग मैकेनिज्म है जो इसको कर रहे हो। तो व्हाट आर ट्रीटमेंट टारगेट्स? Treatment strategy has been significantly changed over the last 2 decades, but LDL cholesterol remained the cornerstone of the treatment. हर जगह आपको LDL cholesterol को ही ट्रीट करना है, आपने वही काम करना है। नंबर 1 क्या है? थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज क्या है? फर्स्ट, यस विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन फार्माकोलॉजिकल, एवरी जैसे डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं जी, पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, non-pharmacological and pharmacological. Among the non-pharmacological, we have 4 things. You have weight loss, improved dietary habits, increased physical activity, and smoking cessation. So this is the diagram which is showing. liquid intake भी आ जाता है। वो अभी हम बात से करते हैं थोड़ा सा। ये थेरेपी, दिस इज़ द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, 4 द कॉर्नर्स ऑफ द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ा सा है। सो व्हाट इज डाइट में क्या होना चाहिए जो आपके लिपिड्स को इम्प्रूव करे? So increase intake of plant stanols, sterols, viscous fiber, legumes, citrus, oats, ठीक है, which are rich in 3 fatty acids. तो ये चीज़ें जो वेजिटेबल ओरिजिन से हैं, लेग्यूम्स हैं, सिट्रस है, ये आपके इसको बेहतर करते हैं। एंड डिक्रीज इन टेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैटी एसिड्स, ये पता ही ना सबको। आज एक पेशेंट कहते हैं देसी घी बड़ा दिल के लिए बड़ा मुफीद होता है, तो मैं इसलिए देसी घी के पराठा खाता हूँ, ठीक है ना। और ट्रांस फैटी एसिड्स, दिस इज अगेन, ये जो हमारा जो दादा समोसा तलता है और उसका पोता समोसा निकाल रहा तो उसी तेल में से, तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं दे आर अगेन वेरी मच एथ्रोजेनिक। और रमज़ान में हम समोसों की इतनी बड़ी लाइन होती है, लगता है कि मुफ्त मिल रहे हैं, तो ये ट्रांस फैटी एसिड्स का भी हमें थोड़ा सा ख्याल है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन व्हाट दे रिकमेंड इज़ अ डैश डाइट। डैश होती है जो डाइट होती है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर। ये इसमें क्या होता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, फ़िश लेते हैं, और लो साल्ट होता है, और इस तरह की 2-3 और चीज़ें होती हैं। सो लेकिन व्हाट इज सजेस्ट इज़ मेडिटेरियन डाइट। किसी को पता मेडिटेरियन डाइट क्या होती है? मेडिटेरियन डाइट, अभी इसमें मैंने वो इसका एक वेल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का लेक्चर था पेस्ट की मीटिंग में ना, उसमें मैंने फैट डाइट्स पे एक दिया था, वो हम शायद रखेंगे कि जो आजकल लोग कीटोजेनिक डाइट पे बात कर रहे होते हैं बड़ी सारी, उसमें मैंने एक लेक्चर दिया था, तो उसमें हमने मुख्तलिफ डाइट्स डिस्कस की थी। तो व्हाट इज़ मेडिटेरियन डाइट? जो उन्होंने देखा ना, पता क्या हुआ, जब उन्होंने यूरोप को देखा ना कि यूरोप में जो मेडिटेरियन बेसन है जिसमें इटली, ग्रीस और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो लोगों के अंदर हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस कम है कम्पेयर टू द नॉर्थ अमेरिकन डाइट्स। तो उन्होंने देखा वो कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो है, दे आर दो पीपल आर यूजिंग मोर फिश, ठीक है, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, सैलड यूज़ करते हैं, और उनकी जो और पोल्ट्री है वो यूज़ करते हैं। वो बीफ और ये दूसरी जो एनिमल वो दूसरे जो है वो वाली वो यूज़ नहीं कर रहे होते। तो उन्होंने देखा इसका, और ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि मेडिटेरेनियन डाइट के साथ एथ्रोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होता है जो लोग वो यूज़ करते हैं। नट्स का दौर है आजकल, ट्री नट्स, पीनट्स, ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट and decrease the cholesterol, blood pressure and risk of cardiovascular disease.
they are quite good for you and you can recommend to your patients. मूंगफली के दाने हाँ? मूंगफली हाँ, मूंगफली, ठीक है ना. और कंजम्पशन वॉलनट, ठीक है, वॉलनट, द कंजम्पशन ऑफ द वॉलनट रिच डाइट इन रैंडमाइज स्टडीज़. ये नीचे स्टडी का मैंने रेफरेंस भी आपको दिया हुआ है. ये स्टडी है, ये 2014 में हुई है. कंजम्पशन वॉलनट रिच डाइट इन रैंडमाइज स्टडी शोड इंप्रूवमेंट इन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपोप्रोटीन बी. ये भी होता है, इस इम्प्रूव करती है, ये बेनिफिशियल है. तो वट पेशेंट पूछ रहे हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि ड्राई फ्रूट लें, ऐसा लें जो साल्ट के अंदर रोस्ट ना हुआ हो, ठीक है. जिसमें देखें ना पीनट है, वो भी साल्ट के अंदर आती है. और उसके बाद आप उसको देखोगे पिस्ता है और कैशू है, कैशू नट्स है, वो उसका. लेकिन वो आप बजाय आप फ़ायदा लेने के नुकसान उठा रहे हो. मूंगफली वैसे खा लें. अभी हम नॉन एचडीएल की बात करेंगे. जो वो नॉन एचडीएल क्या चीज़ है, वो अभी इसमें मैंने स्लाइड नहीं रखी, वो मैंने आपसे पूछना है नॉन एचडीएल क्या है. अच्छा, ये वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. अंडा खाना है कि नहीं खाना, ठीक है ना, ठीक है ना. द मेटा एनालिसिस है, ये पब्लिश, ये भी रिसेंट एक ट्रायल हुआ है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज पब्लिश थ्रू द August 2016 that high egg consumption more than 7 eggs per week was associated with significant low risk of stroke. पब्लिश डेटा है और मेटा एनालिसिस है, डिफरेंट ट्रायल्स का हुआ है. वहाँ पे अमेरिका के अंदर जंग चलती है, एक जो अंडे बनाने वाली है, जो पैदा करते हैं एसोसिएशन है, और दूसरी उनके साथ. तो ऑब्वियसली दे हैव ए काइंड ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट. सो अगेन रेफरेंस, जो एक रीसेंट रेफरेंस है, सर्कुलेशन में पब्लिश हुआ है 2020 में. मेटा एनालिसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज रिपोर्ट सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एग इनटेक एंड no significant association between egg intake and coronary heart disease. लेकिन वो कहते हैं इसको कोई लिंक नहीं. उन्होंने ये स्टडीज़ की है, दोनों मेटा एनालिसिस को देखा. इसके अंदर देखिए हम देखो हम अंडा क्या कर रहे हैं, हम कर रहे थे ऑमलेट ले रहे होते हैं, उसको और ऑयल के अंदर बना रहे. तो जो अंडा खाना है वो वाला, ये जो मैंने दिखाया, ये फ्राई वाला नहीं खाना आपने, ये बॉयल्ड एग, वो उसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, again we were dealing with the COVID is again also associated with the certain lipid abnormalities. There is a dyslipidemia, low HDL cholesterol and LDL level and triglyceride level increase करते हैं, और ये भी it is associated with more dyslipidemic patients. So around 5% of reduction of the body weight, 5% body weight कम कर लें तो आपके लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव कर जाता है. 5%. ये हम प्री डायबिटिक में कर रहे होते हैं कि 5 to 7% बॉडी वेट अगर कम करेंगे तो आपका जो है वो डायबिटीज़ होने का चांस 30%, 59-8% कम है. वेट लॉस डिक्रीजेस द ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड रेजेस द HDL लेवल एंड कैन इम्प्रूव द ब्लड प्रेशर एज वेल. फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़. What are the pharmacological therapies? दवाइयों के साथ ठीक करना, दवाइयों के साथ ठीक करना. कैसे करें? Obviously statin है. 2-3 दवाइयों के नाम बताएं, जो ग्रुप्स बता दें जो भी यूज़ कर सकते हैं. एनीवन? अच्छा, चले बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई आस्क यू व्हाट इज़ नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल. एनीवन? What is non-HDL cholesterol? आपने रिपोर्टों में पढ़ा होगा. वो LDL और VLDL और LDL है. नॉन HDL. नॉन HDL. इस नॉन HDL में आपने देखा होगा, जो रिपोर्ट किसी के पास पढ़ी, किसी के लिपिड की प्रोफाइल की रिपोर्ट है किसी के पास? कि किसी की पेशेंट की अगर वैसे पढ़ी. नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल होता है कि जिसके अंदर HDL को निकाल दिया जाता है, जिसमें आपके वो बस इसमें एपोलाइपोप्रोटीन और जो दूसरे लाइपेजेस हैं या स्मॉल डेंस है, ये सबको मेजर करता है. और ये हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते. ये 129 से नीचे होना चाहिए, हाँ, उसके जो लेवल से. और इसके अंदर स्मॉल डेंस जो LDL की बात कर रहे हैं ना, वो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल का. तो हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, हम ट्राइग्लिसराइड को देख रहे होते, LDL को. हम नॉन HDL को देख ही नहीं रहे होते.
तो यू ऑलवेज लुक फॉर द नॉन HDL एज वेल। जो एक कंपोनेंट चुगताई की रिपोर्ट पे अक्सर बना होगा, उसमें पूरा एक पैरा दिया होता है जो नॉन HDL के कंपोनेंट्स भी लिखे हैं कि ये कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आल्सो एसोसिएटेड विद इट हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये जो आप बात कर रहे थे कि जो हम तो LDL देखते हैं, इसमें नॉन स्मॉल डेंस लाइफ जो LDL है उसमें आता है, नॉन HDL के अंदर आता है। ये 129 से नीचे ही होना चाहिए। अच्छा, दिस इज़ मैंने थोड़ा सा एक टेबल के अंदर बनाया है इसको कि स्टैटिन ये है, दे कॉज इनहिबिशन ऑफ HMG को रिडक्टेज एंजाइम है, ये जो लिवर के अंदर होता है, वेरी वेरी हाईली इफेक्टिव, बट द प्रॉब्लम इज़ दे कॉज माइल्जिया, बड़ा देखा होगा लिपिड्स के साथ, मायोसाइटिस, रेब्डोमायोलिसिस, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम एंड न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। ये जो पॉइंट है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये बड़ी इसके अगेंस्ट लोग कहते हैं ये डायबिटीज़ भी कॉज कर देते हैं स्टैटिन जो होते हैं। अब मैं उस पर बात करेंगे किन में कॉज करते हैं और किन में नहीं करते, ये बात सच है ये नहीं है, विल टॉक लेटर ऑन। एजिटामाइब इट हैज़ एक्शन इंटेस्टाइन पे एक्ट करती है, बिकॉज इट डिक्रीजेज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड मॉडरेटली इफेक्टिव, सेफ एडिशन टू स्टैटिन थेरेपी। तो आजकल आपने देखा होगा एजिटामाइब के साथ कम्बिनेशन में आ रहा है, तो उसके एंड बट इट कैन वर्सन द लिवर फंक्शन। अगर ये देख लीजिए, अगर लिवर LFTs करवाते हैं, अगर आपके वर्स हो रहे हैं तो यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट। एंड मायोपैथी एंड रेब्डोमायलिसिस इफ एडेड टू द स्टैटिन, नेजोफ्रेंजाइटिस, डायरिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आर ये जो दवाई नहीं है PCSK9, दिस इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हेयर, ये नहीं है, बड़ी इफ़ेक्टिव दवाई है ये। इनहिबिशन ये आप समझें कि थोड़ा सा इसका कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। बेसिकली ना ये LDL रिसेप्टर जो होते हैं ना उनका लेवल बढ़ाती है ताकि वो क्लियरेंस आपकी LDL की, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं बेसिकली, ताकि उसके वो LDL कोलेस्ट्रॉल की क्लियरेंस ज़्यादा कर देती है। वेरी इफ़ेक्टिव इन कॉम्बिनेशन विद स्टैटिन थेरेपी। अगर आपका स्टैटिन देने के बावजूद भी आपका वो LDL नीचे नहीं आ रहा तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट PCSK9 एंड ये इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल महीने में एक इंजेक्शन लगता है, बट द कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इंजेक्शन साइट रिएक्शन इंक्लूडिंग इचिंग, स्वेलिंग एंड एरिथीमा एंड पेन। एंड द बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट दे आर again they are not used so commonly, but these top threes they are used up to here. We are using this, but we are not using this, but in the West they are using very quite commonly the PCSK9 because they are covered by the insurance. जो deoxycholic acids हैं उनका क्या रोल है? अभी बात करते हैं, उस पर आगे आ रहे हैं, आगे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें है ये थोड़ी सी लिखा है 2019 की है, लेकिन ये आजकल भी यही जा रही है। ये सारी ये है आपका जो ट्रीटमेंट का आपका प्लान है जो होना चाहिए। देखें, वी हैव प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, हम स्टैटिन प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए होते हैं। एनी डिफरेंस? प्राइमरी प्रिवेंशन क्या चीज़ होती है? जिसमें अटैक ना हुआ हो, जिसमें ICH ना हो, पहले अटैक से बचने के लिए। अगर किसी को हो गया हो तो उसको फर्दर अटैक्स ना हो, ठीक है ना, वो सेकेंडरी हो गया। सो व्हाट दे डू रिकमेंड, ऑल डायबिटिक पेशेंट विद एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये है वो सेकेंडरी पेशेंट विद और 10 ईयर और पेशेंट विद 10 ईयर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क मोर देन 20%, ये एक कैलकुलेटर होता है, अगर उसको 20% से ज़्यादा है, शुड बी ट्रीटेड हाई इंटेंसिटी स्टैटिन। स्टैटिन को भी इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी। एंड गोल क्या होना चाहिए? 50% रिडक्शन ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल, 50% तो कम करें ना, कम अज़ कम, in addition to the lifestyle modification. नहीं ये डिफरेंट होता है। मैंने अपने उस लैपटॉप उस पे होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, वो फैक्टर कैलकुलेटर होता है, आप किसी भी बहुत सारे मिलते हैं, जो US ADA का भी मिलता है। तो ये है सेकेंडरी, जितने भी पेशेंट हैं चाहे उसकी जो भी उम्र है उसको आपने हाई इंटेंसिटी देना ही देना है। डायबिटिक पेशेंट एज लेस देन 40 विद एडिशनल एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी उनके अंदर अभी हार्ट डिजीज नहीं, ये है प्राइमरी प्रिवेंशन का लेवल आ गया कि 40 साल से कम है, लेकिन ये चारों में से कोई चीज़ एक अगर चीज़ है, या तो उनका LDL 100 से ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी है, CKD है, स्मोकिंग है, एल्बुमिन यूरिया है, एंड फैमिली हिस्ट्री प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक, ये 5-6 चीज़ें जो भी हैं।
अगर इनमें से एक भी रिस्क फैक्टर मौजूद है तो आपने उस पेशेंट को, किसी भी एज का पेशेंट है, यंग पेशेंट भी है, यू स्टार्ट विद, मैं जितने स्मोकर्स हैं उनको भी डालते हैं अभी ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक पेशेंट बिटवीन 40 to 75 विदाउट cardiovascular disease or 10 year risk factor less than 20 and diabetic more than 75 should be treated with moderate intensity statin with 30 to 49% LDL reduction। कौन से हैं मॉडरेट इंटेंसिटी वाले? ठीक है, वो अभी बात करेंगे ना उस पर थोड़ा सा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, देखें इसमें क्या आप सारी बात क्या नहीं करें बीच में, सब डायबिटिक को दे, सारे डायबिटिक को दो, सबको दो, प्राइमरी प्रिवेंशन वाले भी, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी दो, एज में अगर आपके इनमें रिस्क फैक्टर है। लेकिन व्हाट आई डू, अच्छा एक और जो बड़ी बात है, मैंने भी देखी, शायद आपने भी देखी कि आपके भी मेरे पेशेंट आते हैं ना, और उनको दवाई छोड़नी हो ना, नुस्खे में सबसे पहले स्टैटिन छोड़ते हैं। उसकी वजह सर मैंने जो देखी हो, या कि मेडिकल है वो मेडिकल स्टोर वाला है, उससे वो जाके पूछते हैं डायबिटीज की कौन कौन सी है, बोलते हैं ये है, तो ये कौन सी। अच्छा, दूसरा सबसे पहले ना वो उस छोड़ते, अभी एक जो मीटिंग थी उसमें हमने कि एक यूके का रॉयल कॉलेज के अंदर मीटिंग थी, तो वहाँ से वही मैंने ये बात उससे की, मैंने कहा हमारे पेशेंट सबसे पहले, एंड वी हैव लॉट मैनी थिंग्स अगेंस्ट स्टैटिन इन द सोशल मीडिया, आपको व्हाट्सएप पे बाकी जगह मिलेगी स्टैटिन, ये तो उनका है कोलेस्ट्रॉल तो कोई नॉर्मल नहीं होता, फलाना होता, पढ़ा भी होगा बहुत सारा, ये तो इसको ट्रीट ही नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, फलाना चीज़ है, ये आपने पढ़ा होगा सारी रबिश। तो आई जस्ट टॉक अबाउट टू दैट पर्टिकुलर कार्डियोलॉजिस्ट था, उसने कहा लुक डॉक, इफ़ आई एम गिवन चांस टू गिव अ सिंगल मेडिसिन टू अ डायबिटिक पेशेंट, आई विल गिव द स्टैटिन, नॉट द एंटी डायबिटिक। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टैटिन, तो यही है, because no other medicine, even anti-diabetic, they are not decreasing the cardio, कुछ अब आजकल जो आ गई वो cardiovascular risk factor कम करती, because it has tremendous power of reducing the cardiovascular risk factor। कोई exaggeration नहीं है क्या? कि diabetes has got other microvascular वैसे just to highlight the importance of statin therapy, because ये नहीं कि आपने दवाई नहीं, शुगर की दवाई नहीं देनी, खुदा ना खास्ता, इसलिए कि दिस इज़ बेसिकली जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटिंग द डिस्लिपिडीमिया, यू हैव टू गिव, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट दे आर हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, ये उनके जो बहन भाई है ना साथ, ये आपके साथ ये जो है, more than 40 years, और strong family history of diabetes and hypertension है, इसमें cardiology है, लेकिन अभी वो खुद बीमार नहीं है, he can take prophylactic। देखिए मैं तो दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, डायबिटिक सबको दूंगा, नहीं वो डायबिटिक का नहीं, फिर देन यू थिंक अबाउट, अगर देन यू गो फॉर द लिपिड प्रोफाइल, इफ इट इज डिस्टर्ब देन यू स्टार्ट। LDL 190 कहाँ से शुरू करते हैं? जी, LDL अगर हो, देखिए LDL का जो टारगेट है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लेस देन 100, अगर पेशेंट एस्टेब्लिश कार्डियोवास्कुलर डिजीज का लेस देन 70 आपका टारगेट। ये तो टारगेट है ना, हाँ, एक्चुअली शुरू करनी है, जो डॉक्टर साहब ने पूछा है LDL का क्या लेवल हो तो शुरू करें। वैसे मैं पर्सनली ना अगर LDL 100 से ऊपर मैं स्टार्ट स्टैटिन। उसमें तो LDL जो लिखा ठीक है, आपकी जो साथ रिपोर्ट्स में देते हैं ना 190 लिखा था, 190 LDL पे यार। Statin used primarily for primary and secondary prevention of cardiovascular disease and stroke। तो और क्या काम ये करते हैं? Because they reduce the highly sensitive C-reactive protein, another marker of inflammation, and help to stabilize the plaque, यानी hemorrhage नहीं होने देते, improves the endothelial function and decrease the vascular inflammation and oxidative stress। ये 4-5 फ़ायदे हैं ये स्टैटिन देने के, जो आपकी ब्लड वेसल पे आ रहा है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो गया, मैं दवाई छोड़ दूँ? और छोड़ आते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल 100 आ गया था, तो मैं उनको कहता है ये दिस इज़ नॉट द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ओनली, दिस इज़ आल्सो यू आर, आपके हार्ट प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिन। सॉरी, अच्छा अब ये अब आपका आ गया स्टैटिन। अब हाई इंटेंसिटी स्टैटिन कौन से हैं? अटॉर्वास्टैटिन 40 to 80 मिलीग्राम डोज पे डिपेंडेंट है। अटॉर्वास्टैटिन 40 to 80 मिलीग्राम, रिजुवा 20 to 40 milligram, which is the most strongest statin available? Rosuvastatin, and which can decrease the LDL by 50%, which is our target in most of the cases, because जो established cardiovascular, because मैं थोड़ा सा इसमें डेविएट करता हूँ,
बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ने वो 40 देते हैं आपको, रोज़ुवास्टैटिन 20 देते हैं सारे एस्टेब्लिश को, और 40 भी कुछ लोगों में मैंने देखे हैं। बिकॉज जिसको एस्टेब्लिश कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑब्वियसली यू गो फॉर दी 20 रोज़ुवास्टैटिन। ऑब्वियसली जिसको हार्ट डिजीज़ हो चुकी, हार्ट अटैक हो चुका, उसको 20 देना ही देना है आपने, ठीक है, 20 मिलीग्राम का आपका देना है। टॉर्वास्टैटिन पॉपुलर तो है, लेकिन रोज़ुवास्टैटिन इज़ मेरा ख्याल है कुछ बेहतर है इसमें। CKD में कंट्राइंडिकेटेड है रोज़ुवा। CKD में जब प्रोटीन यूरिया हो फिर आप उसको नहीं, फिर देन यू गो फॉर द टॉर्वास्टैटिन। यस, मॉडरेट इंटेंसिटी टॉर्वास्टैटिन 10 to 20 मिलीग्राम एंड रोज़ुवा 5 to 10। यानी जो हम डायबिटिक पेशेंट जो हमारे मेजॉरिटी आ रहे होते हैं, उसमें आप 5 भी आप शुरू कर सकते हैं, 5 मिलीग्राम रोज़ुवास्टैटिन, हाँ 10 मिलीग्राम। सिम्वास्टैटिन 22, सिम्वा तो बहुत कम लिखी जाती है आजकल। एंड प्रेवास्टैटिन विच वाज अवेलेबल, लोवास्टैटिन एंड और पिटेवास्टैटिन अवेलेबल है 2 to 4 मिलीग्राम। पिटेवास्टैटिन वैसे मैंने देखा है अच्छी चीज़ है, जो कुछ ना ले रहा हो, जिसको माइल्जिया बहुत हो रहा हो, तो वैसे मैंने ये देखा है कि ये काफ़ी बेहतर है, बड़ा लो पोटेंसी किस्म का है। एलडीएल से कम होता है, ये होम्योपैथिक डोज ये बिल्कुल खैर हर दवाई की अपनी एक पोटेंसी है। हाँ, तो विच कैन डिक्रीज LDL बाई 30 to 50%, यानी इसकी मॉडरेट इंटेंसिटी है। तो ये देखिए जो डोज़ आपकी टारवा की, वो ऊपर वाली जो हाई डोज़ हमने दिशी, इसके मुकाबले में जब इस डोज़ पे जाता है ये मॉडरेट इंटेंसिटी बन जाता है। लेकिन पिटेवास्टैटिन अगेन इन द मॉडरेट इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी में क्या है, सिम्बा 10 मिलीग्राम, प्रेवा 10 मिलीग्राम, लोवा, फ्लेवास्टैटिन और पिटेवा 1 मिलीग्राम, ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये LDL को 30% तक डिक्रीज़ करती है। इस लो में आप टारवा और रोज़ुवा नहीं देते हैं, यस, ठीक है ना, लो में। तो ये है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी आती है जी, ग्रे फ्रूट के साथ आप कुछ लोगों का है कि वो नहीं देना चाहिए, ग्रे फ्रूट का जूस और स्टैटिन का आपस में ताल्लुक। प्रीवियसली इधर थे कि उसकी जो स्टैटिन की डोज है ना, वो आपको बढ़ानी पड़ती है, दे हैव ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन। बट स्टडीज़ लेटर ऑन जो जर्नल 2016 अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में है, द रिस्क ऑफ एब्डोमेनालिसिस मच लेस इन कंपेरिजन ओवर, उसमें कहते हैं एब्डोमेनालिसिस ज़्यादा हो जाती है। तो नथिंग टू डू विद दिस ग्रे फ्रूट, एंड ये इस शक को रिमूव कर दें, ये ग्रे फ्रूट ड्रिंकिंग जूस के साथ इसका कोई ताल्लुक है। सो ये है डेज, ये है ईयर्स। तो LDL जब लो होता है तो एंडोथेलियल फंक्शन रिस्टोर्ड, इन्फ्लामेशन रिड्यूस, इस्कीमिक एपिसोड रिड्यूस, प्लाक साइज स्टेबलाइज एंड कार्डियक इवेंट रिड्यूस। So this is a short term benefit, this is a long term benefit which you are getting with the statin therapy. ये है। अच्छा, जो हमने बात की थी अभी कि न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, लोग जशन कहते हैं शुगर कर देती है, स्टैटिन सारे शुगर कर देते हैं, तो आप बड़े कॉशियस हो जाते हो। देयर वाज जुपिटर ट्रायल, उसमें भी है कि स्टैटिन आल्सो कॉज न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। द जुपिटर ट्रायल ये था, इंटरवेंशन ट्रायल था। द रिस्क इज़ हायर, उनका करते तो हैं कि इन रोज़ुवास्टैटिन वाज इंक्रीज बाई 0.6% कंपेयर टू द प्लेसिबो ग्रुप, यानी ये उसकी परसेंटेज है 0.7, लेकिन ये रिस्क किसमें, द रिस्क इज़ हायर विद हाई डोज एंड इन पेशेंट विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिनको पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, BMI 30 से ज़्यादा है और A1C 6 से ज़्यादा है, है ना। तो ये जो वजह है कि दिस इज़ जुपिटर ट्रायल में ये जब उसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखा गया, तो रिस्क इज़ क्वाइट लो, बट इट इज़ देयर, बट इन दोज पेशेंट who are already having metabolic syndrome, who are having BMI, they are obese and they are having disturbed glycemic control. Ezetimibe, cholesterol, ये inhibiting intestinal absorption करती है, is used combination with statin, इसका फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, improve it trial हुआ था, improve it trial, it shows it had a significant reduction in the LDL cholesterol level. ये इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। एज़िटामाइब के साथ अगर आप नहीं कंट्रोल हो रहा तो ये है कि इसका अच्छा इफेक्ट है, इम्प्रूव ट्रायल ने ये प्रूव किया। फाइब्रेट्स बहुत पाकिस्तान के अंदर फिनोफाइब्रेट भी अवेलेबल है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं और इट कैन डिक्रीज़ द ट्राइग्लिसराइड लेवल बाय 30 to 50%। और मैंने तो फिनोफाइब्रेट के साथ बहुत अच्छे इफेक्ट देखे हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइड में बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है। और बट फाइब्रेट इंक्रीज द LDL लेवल बाई अप रेगुलेशन ऑफ APO एंड 67 का भी कैप्सूल आता है, 200 200 का भी आता है। अच्छा, व्हाट आर द
ये फील्ड स्टडी ने, जब वो एक फील्ड स्टडी हुई थी काफ़ी देर पहले, उसने कहा कोई इसमें कोई हार्ट डिजीज़ पे इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं है, बट ACCORD trial has shown did not decrease the non-fatal MI infarction, CVE and non-fatal stroke. यानी अगर अकेले यूज़ करें तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट फ़ायदा कोई नहीं है। इनडायरेक्ट फ़ायदा है कि आपका LDL कोलेस्ट्रॉल कम करेगी और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये इसके लिए मैंने ये स्लाइड है आप लोगों के लिए। फाइब्रेट आर मेटाबोलाइज्ड इन द किडनीज एंड शुड बी अवॉइडेड इन कॉशन विद द पेशेंट विद CKD। CKD का पेशेंट है ना, आपने बहुत सारे पेशेंट देखे हो जिनको आप देखो कि आपका CKD उसका बढ़ गया, आप डोज इसकी डिक्रीज़ करो, 67 mg 200 की बजाय वो कर दो, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जेमफाइब्रोजिल एंड स्टैटिन प्रीडिस्पोज हाई रिस्क ऑफ मायोपैथी। इसको किस तरह हम एनालाइज करेंगे CKD के? आप देखो ना, क्रिएटिनिन पेशेंट का, एक पेशेंट CKD का पेशेंट, उसको ना दो, यूरिया क्रिएटिनिन राइज कर देगा उसका। अगर आप पहले उसका नॉर्मल था, आपने ये फेनोफाइब्रेट डाला तो क्रिएटिनिन हाई आ गया, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू डिक्रीज। और जब आप जेमफाइब्रोजिल जो जेमपेट के नाम से है, जब स्टैटिन के साथ देते हैं, यू हैव मोर चांस ऑफ ग्रेटर रिस्क ऑफ मायोपैथी, जिसको माइल जे भी कहते हैं, दर्द क्या करना चाहिए? बंद करनी चाहिए, कॉम्बिनेशन देना चाहिए। जो कह रही है देखो ट्राइग्लिसराइड के लिए जो मैंने कट ऑफ पॉइंट है ना, जो मैंने कार्डियो से डिस्कस किया, वो कट ऑफ पॉइंट अगर खाली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा जो 500 से ज़्यादा, देन यूज बहुत सारे 500 मिलीग्राम से ज़्यादा होते हैं, तो यही है कि हाँ, अगर खाली 500 से ज़्यादा तो फिर सकते हैं आप। फिर आप दें, लेकिन अगर आपका 200 250 230 240 चल रहा है तो आपका स्टैटिन से ही नीचे आ जाता है। उसमें स्टैटिन ही हाँ, काम उस पर स्टैटिन फेलियर में क्या करें? हैं? फेलियर हाइपोकोलेस्टेरोल में हम क्या करें? उसमें भी यही है ना, आपकी अप्रोच यही है ना, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। देखें जो ट्राइग्लिसरीडीमिया, जो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होता है ना, ये बहुत सारे पेशेंट हैं, 1000 2000 2500 होता है। उसको क्या करें? ऑब्वियसली मैं तो उसके अंदर फिर हमें देना पड़ता है, ये उसमें फाइब्रेट्स आप फाइब्रेट देना पड़ते हैं, क्योंकि उसमें देखो आपको पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट पैंक्रेटाइटिस के साथ आपके आते हैं। सर ये 500 से ज़्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैं और वो नहीं कंट्रोल से हुए तो स्टैटिन के साथ मायोपैथी अवॉइड करने के लिए आप फिनोफाइब्रेट भी तो provide देखिए मायोपैथी सब में नहीं होगी कि सब में मायोपैथी होगी, लेकिन चांस रिस्क हो जाता है। अगर पेशेंट के जी माइल्जिया हो रहा है या उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसके जो एल्डोलेज और बाकी सीके एंजाइम ज़्यादा वो है, फिनो के साथ कॉम्बिनेशन में तो मायोपैथी का चांस नहीं होगा। फिनो के साथ भी होता है लेकिन इतना नहीं है, जेमफेब्रोजिल के साथ है। CQ10 के दे देते हैं साथ, इसका भी कोई रोल है कि नहीं? नियासिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर इंक्रीजिंग HDL कोलेस्ट्रॉल, लेकिन स्टडीज़ ने डिड नॉट शो एनी एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट व्हेन कंपेयर्ड विद द स्टैटिन अलोन। और साइड इफेक्ट ज़्यादा है। साइड इफेक्ट ज़्यादा है, फ्लशिंग करती है फेस को, डायरिया वगैरह करती है। मकसद नहीं पूरा तो फिर क्या फायदा? एम हाई एक ट्रायल हुआ था, डिड नॉट शो एनी कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट आफ्टर एडिंग नियासिन इन हाई रिस्क पेशेंट हु आर ऑलरेडी रिसीविंग द सिम्वास्टैटिन एज़िटामाइड। ये है PCSK9, ये है, इसका नाम एलेरोकोमाबाइब मैप और एवलोकोमाब इज़ वेरी पोटेंट ड्रग and can decrease LDL cholesterol significantly when used in as monotherapy or in combination। ये स्टैटिन के साथ दे सकते हैं। They lead to increased expression of LDL receptor causing reduction of LDL level. These are given by subcutaneous injection every 2 to 4 weeks। महीने बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन बाद भी दे सकते हैं। अच्छा सर, ये इतने मुश्किल नाम रख कैसे देते हैं? ताकि आपको याद करें, आप गौर से पढ़ें। PCSK9 इनहिबिटर्स आर इंडिकेटेड इन पेशेंट, ये किन लोगों को देने हैं कि जिनको आप मैक्सिमम डोज दे रहे हैं स्टैटिन की, यानी आप स्टैटिन की 80 मिलीग्राम पर पहुंच गए, उसका स्टैटिन नीचे, वो नीचे ही नहीं आ रहा है LDL कोलेस्ट्रॉल, उन लोगों के अंदर ये है, आप ये देते हैं। और अंडरलाइंग होमोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया एंड हेटेरोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया के लिए, ये उनके लिए, ये वो ड्रग उनके लिए। वेरी एक्सपेंसिव, द एनुअल कॉस्ट इज़ $14,500। नहीं FDA अप्रूव्ड है। जो हीमोफीलिया के $3.2 मिलियन which is more than 100 times higher than the generic statin। करने होते हैं ना, उन्हें अपने दोस्तों को थोड़ी भेजने होते हैं। ये देखो 100 गुना स्टैटिन से महंगी है, ये इतनी ज़्यादा ये महंगी है। Bile acid sequestrant, they are end product of cholesterol catabolism, cholestyramine और ये दी जाती है, और कोल्सिवैलम ये आप उसमें भी देते हैं, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी देते हैं, लेकिन इसलिए दे आर नॉट यूज सो कॉमनली। ये जो चीज़ है, ये टॉपिक है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपने बहुत सारे देखा होगा आजकल, ये अवेलेबल हैं, बड़े बड़े कैप्सूल, इतने बड़े बड़े कैप्सूल। ये जो तस्वीर बनी है किस नाम से आ रही है, ICA वाले बना रहे थे इसको,
omega-3 के नाम से आपने हैं? नहीं 7Cs वाले, दिस इज omega-3 आर यूज्ड एज एन एड ऑन थेरेपी. ये कोई 60 रुपीस का होता था. नहीं ज़्यादा महंगा. अच्छा. To reduce triglyceride level, omega-3 fatty acid formulation contain EPA and docosahexaonic acid. आपका पसंदीदा नाम. अच्छा, जापान में एक ट्रायल हुआ, जापान EPA लिपिड इंटरवेंशन ट्रायल showed the treatment with EPA of patient impaired glucose tolerance hypercholesterolemia resulted in 22% reduction in coronary artery disease instead compared to the normoglycemic patient. यानी इसका बेनिफिशियल इफेक्ट आपके अंदर है कार्डियोवैस्कुलर में. However, in origin trial, the use of omega-3 fat did not show any cardiovascular benefit compared to placebo. लेकिन एक ट्रायल के अंदर इसकी एफिकेसी है. इसका रोल है, वो कहते हैं कि अगर आप जो उसके साइड इफेक्ट स्टैटिन का कम करने के लिए जो देखो जब देखें बात सुने, जब हम बात कर रहे होते हैं ना ये जब ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, तो दे आल्सो हाइपरट्राइग्लिसरीमिया के अंदर ये दे आर क्वाइट इफेक्टिव. अगर आप इन कॉम्बिनेशन विद द फिनोफाइब्रेट और साथ स्टैटिन प्लस ये ओमेगा-3 देते हैं तो उसके साथ यू हैव द मोर बेनिफिशियल इफेक्ट. omega-3 को और भी ट्रायल्स उन्होंने कहा है कि नो बेनिफिट है. हाँ अच्छा, बट ये एक थोड़ा सा जो मेरा रिड्यूस्ड ट्रायल हुआ, बहुत बड़ा ट्रायल था. इट्स अ डबल ब्लाइंड रेंडमाइज मल्टी सेंटर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल. 8,000 पेशेंट with established cardiovascular disease and diabetes and other risk factor was published. In this study, the patient were already being treated with statin and had fasting triglyceride level between 135 to 499 and LDL cholesterol level between 41 to 100 milligram. They were randomized to receive either total daily dose of 4 milligram of this omega-3 fatty acid or placebo. The primary endpoint was composite cardiovascular death, non-fatal stroke, non-fatal MI, coronary revascularization, unstable angina, a median fall of 4.9. There was 25% reduction in the primary endpoint with this versus placebo. P-value was quite significant. तो ये जो सारा पढ़ने का मकसद है कि ये भी एक ट्रायल है. अभी आजकल ये इसका रोल काफ़ी अवेलेबल हो रहा है. So in conclusion, diabetic dyslipidemia is a prevalent condition in patients with diabetic dyslipidemia are at particular high risk of atherosclerotic cardiovascular disease. For the majority of the patients, statin therapies is in concert with the therapeutic lifestyle changes remain the first line. There are, however, many other lipid-lowering medication available to treat the individual who do not attain LDL goals on statins such as ezetimibe, PCSK9 and EPA. Could be the another endocrine therapy in patient with atherosclerotic cardiovascular disease. So this is जो summarize करने का मकसद ये है कि आपने जो सारी जो discussion हमने की है कि statin has definite role in diabetes management because you are not managing the diabetes alone, you are managing the cardiovascular disease. Diabetic dyslipidemia is quite common. Hypertriglyceridemia is very common entity, and more atherogenic small LDL cholesterol level need to be treated. So you have to use the statin in every diabetic patient as a primary prevention or secondary prevention. If the things are not under control, you can add some other medications like ezetimibe, PCSK9 if it is available, and EPA to reduce the risk factor. Thank you very much. Thank you.